faculty at Division of Plant Pathology, and he has expertise in diseases that attack vegetables, particularly in our region. So, in the interest of all the participants, I thought it is very much useful for them to have some lecture on these diseases, how to control them, and sort of field sanitation, etc. So I request you, Dr. Zahoor, to come to the dais. Good morning to all and Assalamu alaikum. I welcome you all to this presentation. Basically, the topic that was given to me, it was management of biotic citruses to produce disease-free vegetable crops. But I guess you had a presentation on insect pests of vegetable crops. So you know, among biotic citruses, we can have an insect pest. We did not have yet, no? Insect pest, only by We have one time constraint. Otherwise, we have kept one. Biotic citruses includes insect pests, it includes weeds, and of course it includes diseases. So I have restricted my topic to disease only. And you know, in case of vegetable crops, there are so many diseases that affect vegetable crops. Even if we see a single crop like chili, there are hundreds of diseases which affect chili only. So it is not possible to discuss all those diseases. I have restricted my topic to those diseases which affect our vegetable crops under Kashmir conditions. So in this topic, I will be discussing about how you can diagnose a disease and then how we can manage these diseases. So when we say diagnosis of a disease, you know, it is basically the symptoms on the basis of which we can identify disease, and then it is the pathogen that is associated with that disease. So we have to identify the disease on the basis of symptoms and on the basis of pathogen. So this will be my topic, and finally we will be discussing about the management of all these diseases. So this is my topic, major disease of vegetable crops and their management, and it is particularly under Kashmir conditions. So you know, there are some diseases which are common to all vegetable crops. Like we have one disease that is damping crop. So it affects almost all the vegetable crops. Okay? Then we have another disease that is wilt. You see any vegetable crop that is affected by wilt, that is affected by damping crop disease. So let us first discuss those diseases which affect almost all the vegetable crops. Then we will come to crop-specific disease. So this is first disease that is damping crop. And you know, in case of damping crop disease, it is basically the nursery disease. It is in nursery plants. So in this disease, there is a rot at the basal portion of the stem, and then because of this rot at the basal portion of the stem, then seedlings topple out. You can identify this disease. There is basal rot, and then because of this rot, these seedlings topple out. So it is a simple disease. You can identify it easily by these symptoms, and then. अगर आप चाहें तो उर्दू में भी हो सकता है. In case comes different. If you want to speak in Urdu, I can also speak. How do you want me to speak? Want me आप to speak? उर्दू में ही बोलिए, थोड़ा उससे इंटरेक्ट होता है. तो ये जो डिजीज है ना, ये आप नर्सरी में देखते हैं. ये डिजीज ऑलमोस्ट सारे वेजिटेबल क्रॉप जो है उनमें ये डिजीज लगती है. तो अगर इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज है, तो इसमें आप क्या सिम्टम देखोगे. एक तो आप ये बेसल रॉड होता है सिस्टम में, और बिकॉज ऑफ दिस रॉड ये फिर इन सीडलिंग्स का ये टॉपिंग डाउन हो जाता है. तो ये एक डिजीज है जो नर्सरी में होती है. और यू नो, ये जो डिजीज होती है, इट इज कॉज्ड बाय फंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी. एंड मेन जो फंगी है इसमें, वन इज पीथी, वन इज राइजोप्टोनिया, इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिजीज. इस डिजीज में ज्यादातर एक फंगस है जिसका नाम है राइजोप्टोनिया. ठीक है, वो है ये वाला फंगस. और इसके बाद और एक फंगस भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है समटाइम्स, वो है पीथिया. ठीक है, तो ये दो पैथोजन है इसके साथ, इस डिजीज के साथ, जो ये कॉज करते हैं डिजीज. तो अगर इन पैथोजन्स को भी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि वही डायग्नोज डिजीज, हम किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन सिम्टम्स, और सिम्टम आपने देखे हैं इस डिजीज में क्या होते हैं, और देन बेस्ड ऑन द पैथोजन. ठीक है, तो पैथोजन, ये जो राइजोप्टोनिया पैथोजन है, बिकॉज ये जो एक फंगस है ना, ये नॉर्मली जो फंगस होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर्स, बनाते हैं ना स्पोर, आपको पता होगा.
फंगस जो होते हैं वो स्पोर बनाते हैं, और मोस्ट ऑफ द फंगस हम आइडेंटिफाई करते हैं उसी स्पोर की शेप पे कि उसका स्पोर कैसा है, उसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. बट इन दिस केस ये जो रिजल्ट आया है इसमें स्पोर्स नहीं बनते हैं, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं माइसिलियम के बेस पे. ठीक है, तो माइसिलियम के बेस पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसका जो ब्रांचिंग होता है माइसिलियम का, इट इज एट राइट एंगल. जैसे आप इसमें देखते हो इट इज एट राइट एंगल. अदरवाइज जो बाकी फंगस है दे डोंट ब्रांच एट राइट एंगल, उनका इरेगुलर ब्रांचिंग होता है, बट इसमें राइट एंगल ब्रांचिंग होती है. तो इसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन पीथियम जो है ये स्पोर बनाता है, और वो जो स्पोर बनते हैं एक स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम. ठीक है, इसके अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, देन दैट मींस इट इज ए पीथियम. ठीक है, तो ये दो फंगस जो है ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज करते हैं. देन डिजीज साइकिल पे मैं जैसे मैंने कहा कि आई विल रिस्ट्रिक्ट माय दिस टॉक टू ओनली डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस एंड देन टू मैनेजमेंट. तो ये पोर्शन मैं स्किप करता हूँ. ये भी डिजीज साइकिल है इनका, कैसे इनका डिजीज साइकिल होता है. Then another important disease that affects most of our vegetable crops, it is wilt. ये इसको बोलते हैं wilt, जो आप जानते हैं. सबसे important wilt यहाँ पे कश्मीर में कौन सा है, जो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं? फ्यूजेरियम wilt ऑफ चिली, है ना. चिली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ कश्मीर में. तो ये एक उसकी मैंने यहाँ पे आपको सिम्टम्स दिखाए हैं. तो अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है डिजीज को, दैट इट इज अ विल्ट डिजीज, तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? आप क्या सिम्टम देखते हैं उसमें? लीव्स का पहले थोड़ा येलोइंग हो जाएगा, फिर उनका ड्रूपिंग हो जाएगा, है ना, जैसे इस स्लाइड में दिखा है ड्रूपिंग हो जाएगी. देन फाइनली होल प्लांट गेट्स किल्ड. ठीक है, ये इसके सिम्टम्स है, अबव ग्राउंड सिम्टम्स. और फिर उसमें अगर आप उसको कट करोगे उसके स्टेम को, यू विल सी डिस्कलरेशन, ब्राउन डिस्कलरेशन जैसे इसमें है, अंदर इसके सिस्टम के अंदर में डिस्कलरेशन होगी. तो दीज आर, और अगर ये जो विल्ट सिम्टम है ना, इट इज एग्जैक्टली द सेम जैसे हम अगर किसी प्लांट को हम वाटर सिट्रस में देंगे, वाटर सिट्रस रखेंगे तो उसमें भी ये सिम्टम आते हैं. बट दिस डिस्कलरेशन इन केस ऑफ वाटर सिट्रस यू विल नॉट सी दिस डिस्कलरेशन. ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो विल्ट सिम्टम हम किसको कहते हैं? जब भी प्लांट में ड्रूपिंग होगी, लीव्स की, वाटर सिट्रस होगा, तो उसमें आप विल्ट सिम्टम देखते हैं. तो व्हेन इट इज बिकॉज ऑफ पैथोजन, ये जब पैथोजन की वजह से है, फंगस की वजह से है, you will see in that case you will see this discoloration inside the stem. ठीक है, और वाटर सिट्रस में आप नहीं देखोगे. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. और इसके और वो जो पहला वाला मैंने दिखाया, इट इज बिकॉज ऑफ वन फंगस व्हिच वी कॉल फ्यूजेरियम. जैसे आपने कहा कि फ्यूजेरियम, और फ्यूजेरियम ही नहीं विल्ट करता है, और भी बहुत सारी फंगस विल्ट करते हैं. उसमें एक कॉमन है फंगस जिसको हम बोलते हैं वर्टिसिलियम, तो वो भी एक विल्ट करता है. तो उसमें एक टिपिकल, जैसे टमाटो में हमारे यहाँ पे वर्टिसिलियम विल्ट होता है, तो उसमें जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपको कि जनरल येलोइंग हो जाती है, लीव्स की ड्रूपिंग हो जाती है. बट इन दिस केस लीव्स में ये जो वी शेप्ड डिस्कलरेशन और नेक्रोटिक रीजन भी बनते हैं. ठीक है, तो दिस इज टिपिकल डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजेरियम विल्ट एंड वर्टिसिलियम विल्ट. इसमें वी शेप्ड नेक्रोटिक रीजन भी बनते हैं. बाकी जो सिम्टम्स है वो कॉमन है. देन जैसे मैंने कहा कि आप इसमें विल्ट जो है इट इज बिकॉज ऑफ फ्यूजेरियम एंड बिकॉज ऑफ वर्टिसिलियम. और फ्यूजेरियम सभी लोग जानते होंगे कि फ्यूजेरियम के जो स्पोर्स हैं वी आइडेंटिफाई फ्यूजेरियम ऑन द बेस ऑफ, हम स्पोर को देख के उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इज इट फ्यूजेरियम और एनी अदर फंगस. तो इसमें क्या होता है, इसके स्पोर कैसे होते हैं? कोई स्टूडेंट जानता है फ्यूजेरियम को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? स्पोर के बेस पे ना. तो उसके सिकल शेप, ऐसे सिकल शेप स्पोर्स बनते हैं. तो दिस इज आइडेंटिपिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ फ्यूजेरियम. देन वर्टिसिलियम का ये जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है इनका, इनके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. देन इसका डिजीज साइकिल भी मैं स्किप करूंगा. देन रूट रॉट्स, इट इज अनदर कॉमन डिजीज आफ्टर डैम्पिंग ऑफ विल्ट एंड दिस अनदर कॉमन डिजीज दैट इज रूट रॉट. So in case of root rot, we will see rotting of roots. Because of that rotting of roots, we will see exactly the same symptoms as we see in case of wilt, है ना. Because in both the diseases, दोनों disease में क्या होता है कि there is जो water uptake होता है वो नहीं होता है ना. Because of in case of wilt, there is blockage of xylem vessel, there is no transportation of water and nutrients, and exactly when there is rot of roots, there is no translocation of water and nutrients, है ना. उसकी वजह से फिर वो एपिडर्मिक सिम्टम आते हैं. तो मैंने जो उसमें कहा विल्ट के केस में देयर इज डिस्कलरेशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, इसमें जस्ट देयर विल बी रॉट ऑफ रूट्स और डिस्कलरेशन नहीं होगी इसमें. ठीक है,
और इसके केस में जैसे स्क्लेरोशियम एक फंगस है वो ये राट करता है, और आप जब रूट राट होगा तो उसमें आप देखोगे कि उस राट के साथ इन केस ऑफ स्क्लेरोशियम राट देयर विल बी व्हाइटिश माइसेलर ग्रोथ, उसके राटेड एरिया पे माइसेलर ग्रोथ भी होगी, और उस फंगस का एक कैरेक्टर है कि ये फॉर्म स्क्लेरोशियम। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो दीज आर बेसिकली स्क्लेरोशियम इज कम्पैक्ट मास ऑफ माइसेलर। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, दे मे बी इंटरेस्टेड इन दैट, कि स्क्लेरोशियम बनाता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ दैट फंगस, इट फॉर्म्स व्हाइटिश माइसेलर ग्रोथ एंड विद दैट माइसेलर ग्रोथ देयर आर स्क्लेरोशियम बॉडीज आल्सो। So these were some diseases which are common, जो common है most of the vegetable crops में, जैसे डैम्पिंग ऑफ wilt, root rot, वो almost सभी vegetable crops में होती है। But there are other diseases which are specific to crop only, ना। तो जैसे मैं पहले मैं यहाँ पे कुकर बिट क्रॉप्स जो हमारे यहाँ पे जैसे कुकम्बर है, बोटल गार्ड है, ये इन सब क्रॉप्स में भी कुछ डिजीज हैं जो इनके स्पेसिफिक डिजीज हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है पाउडरी मिल्ड्यू है ना। आप वेजिटेबल ग्रो जो करते हैं ना ये कुकर बिट क्रॉप्स, तो उसमें आप देखोगे कि दिस इज कॉमन डिजीज, और ये पाउडरी मिल्ड्यू वो डिजीज हैं जो हर एक क्रॉप में लगती है कुकर बिट क्रॉप्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा है कि कुकम्बर को भी अफेक्ट करता है, बोटल गार्ड को, रिच गार्ड, बिटर गार्ड, एवरी कुकर बिट क्रॉप उसमें ये डिजीज लगती है। एंड इट इज द रोज में ज्यादा होती है, इसमें रोज हाँ बहुत ज्यादा रोज बहुत, जहाँ पे एक तो कुकर बिट क्रॉप है और ऑर्नामेंटल क्रॉप, जैसे आपने रोज कहा ना, ऑर्नामेंटल क्रॉप में हर एक क्रॉप में मेरा एक स्टूडेंट इस पे काम कर रहा था, तो एक्सेप्ट मैरीगोल्ड के बगैर जो भी यहाँ पे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है उनमें उनको अफेक्ट करता है। तो इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट डिजीज टू आइडेंटिफाई। ठीक है, इसको कोई लेमैन भी आइडेंटिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन इट्स सिम्टम्स। यू सी पाउडरी लाइक ग्रोथ, इसमें पाउडरी लाइक ग्रोथ होती है लीव्स पे, तो उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू इसलिए कहते हैं। देन फंगस को मैं बताऊं इसका क्या होता है कि मैं आई विल स्पीक। ठीक है, ये उसका फंगस होता है कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज आफ्टर पाउडरी मिल्ड्यू, सॉरी पाउडरी मिल्ड्यू, कुकर बिट क्रॉप्स में आफ्टर पाउडरी मिल्ड्यू के बाद अगर कोई कॉमन डिजीज है दैट इज डाउनी मिल्ड्यू। और डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स, इस तरह की डिजीज आपने देखी है कभी कुकर बिट क्रॉप्स में, इसको कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंगुलर स्पॉट्स बनते हैं विच आर इनिशियल स्टेज में लाइट ग्रीन होते हैं, देन दे टर्न क्लोरल, येलोइंग हो जाती है उसमें, एंड दीज एंगुलर स्पॉट्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय वेन्स में रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हो दे आर लाइट ग्रीन, एंड द डाउन साइड ऑफ लीफ, अगर आप नीचे देखोगे उस लीफ को तो यू विल सी दिस व्हाइटिश एंड ब्लैकिश ग्रोथ। ठीक है, और ये व्हाइटिश एंड ब्लैकिश ग्रोथ क्या होती है, ये फंगस जो अपना स्पोर बनाता है, स्पोरन जो स्पोर बनाता है, स्पोरन जब बनाता है वो होता है। सो दिस इज टिपिकल दिस डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, देन ये इसका फंगस है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं डाउनी मिल्ड्यू फंगस को। इसका जो टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न होता है, और उस ब्रांचिंग पैटर्न में वी से डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच मींस एवरी ब्रांच विल गिव राइज टू ब्रांचेस। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच, और इसका जो टिप होता है इट्स पॉइंटेड। ये टिपिकल, अदरवाइज हमें बहुत सारे डाउनी मिल्ड्यू फंगस है। डाउनी मिल्ड्यू फंगस एक ही नहीं है, कुकर बिट का अपना डाउनी मिल्ड्यू फंगस है, बाकी जैसे हमारा ऑनियन में यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू होता है, और भी बहुत सारी क्रॉप्स में डाउनी होता है, बट कुकर बिट का अपना फंगस है, और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बाकी डाउनी मिल्ड्यू से, इट इज बेस्ड ऑन दिस डाइकोटोमसली ब्रांच, स्पोरेंजियोफोर को कहते हैं, और इसका जो टिप होता है दैट्स पॉइंटेड, देन दिस इज स्पोरेंजियम, और इन टिप्स पे ये स्पोरेंजियम बनते हैं। Then we have another important disease in case of cucurbits. Actually we have under Kashmir conditions में ज़्यादातर जो disease होती है ना, they are caused by fungi. ठीक है, most of the diseases are caused by fungi, except few diseases which are of bacterial origin. ठीक है, उसमें एक disease ये है। ठीक है, कश्मीर में अगर आप देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ डिजीज जो है ना वो फंगी से होती है, और कुछ ही डिजीज हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में जो 2 या 3 डिजीज हैं जो बैक्टीरिया से होती है, और वी हैव फ्यू वायरल डिजीजेस। ठीक है, कुछ 1-2 वायरल डिजीज हैं, 2-3 वायरल डिजीज हैं, बट मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगी। तो ये एक डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है।
इट इज कॉल्ड एंगुलर लीफ स्पॉट। तो इसमें भी वही जैसे डाउनी मिल्ड्यू पर आपने देखी कि एंगुलर लीजन्स बनते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से लीजन बनते हैं, बट दे आर लाइट ग्रीन इन कलर, देन दे टर्न क्लोरेटिक, बट हियर दे आर इनिशियली दे आर लाइट ग्रीन, देन दे टर्न व्हाइटिश इन कलर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो व्हाइटिश सेंट्रली जो स्पॉट है ये गिर जाता है, ठीक है, और देन ये होल्स बन जाते हैं। ये एक डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, एंड दिस इज बैक्टीरिया, इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। देन इन केस ऑफ बैक्टीरिया यू नो, मैंने इसको रखा यहाँ पे इसलिए कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन ए फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज, है ना, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज को आइडेंटिफाई करना पैथोजन की बेस पे इट इज डिफिकल्ट, है ना। बैक्टीरिया को आप सिंपली माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ओज टेस्ट। ओज टेस्ट में हम क्या करते हैं, ओज टेस्ट में उस टिश्यू जो इन्फेक्टेड होगा उसको कट करते हैं और उसको डिप करते हैं क्लियर वाटर में, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी, उसके बाद आप क्या देखते हैं जब कट करते हैं तो यू विल सी कि इससे बैक्टीरियल ooze निकल के आ जाता है, एंड यू कैन सी इट बाय योर नेकेड आई। माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखते हैं और आप इसको नेकेड आई से भी देख सकते हो कि बैक्टीरियल ooze इज कमिंग आउट फ्रॉम, वो जो टिश्यू इन्फेक्टेड है बैक्टीरिया से, उससे बैक्टीरियल ooze निकल के आ जाता है वाटर में। सो दिस इज टेस्ट फॉर, ये एक टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है कि हाउ वी कंफर्म इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। देन अनदर डिजीज इन केस ऑफ कर्बेट्रॉपस में जैसे मैंने पाउडर मिल्ड्यू का, डाउनी मिल्ड्यू का, उसके बाद मैंने एंगुलर लीफ स्पॉट का, एक वो डिजीज यहाँ पे होती है विच इज कॉमन डिजीज, इट इज ऑल्टरनेट लीफ स्पॉट, ठीक है। और ऑल्टरनेट स्पॉट में क्या होता है कि यू विल सी राउंड ब्राउनिश स्पॉट्स, एंड देयर आर, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे इस रीजन को, देयर आर कंसंट्रिक रिंग्स, है ना, कंसंट्रिक रिंग्स भी होते हैं। तो ये इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। और अल्टरनेरिया जैसे मैंने कहा कि फ्यूजेरियम फंगस भी सिंपल है आइडेंटिफाई करना ऑन द बेस ऑफ स्पोर्स, इसी तरह अल्टरनेरिया के जो स्पोर होते हैं ना, इस फंगस को भी हम स्पोर के बेस पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, अल्टरनेरिया के स्पोर में क्या टिपिकल कैरेक्टर होता है, जैसे फ्यूजेरियम का सिकल शेप होता है, इसका क्या होता है, इसमें यू विल सी सेप्टेशन, ये जो होते हैं ना वॉल्स, ये सेप्टेट को बोलते हैं सेप्टा, एंड इन केस ऑफ अल्टरनेरिया देयर आर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेप्टा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स भी है, और इसमें एक लॉन्ग बीक भी होती है, तो इसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन आफ्टर कुकरपिट्स टमाटो, इन केस ऑफ टमाटो यू नो वी हैव दो डिजीज इंपॉर्टेंट है टमाटो में, वो कौन सी है, सो टमाटो में भी और पोटैटो में भी, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट, एंड अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी सॉइल। तो अल्टरनेरिया मैंने बताया फंगस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन दिस केस आल्सो उसके बेस पे आप अल्टरनेरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें भी, और ये जो अल्टरनेरिया है इन केस ऑफ कुकरपिट्स इट अफेक्ट्स लीव्स मोस्टली, और यहाँ पे आप फ्रूट्स पे भी इसके सिम्टम देख सकते हो और इसके सिम्टम आप लीव्स पे भी देख सकते हो। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि देयर आर कंसंट्रिक रिंग्स विद इन द रीजन्स, है ना, तो ये इसका टिपिकल आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें कंसंट्रिक रिंग्स बनते हैं। और फ्रूट्स पे जब इसके रीजन आते हैं, ब्लैक रीजन आते हैं, बट दे आर संकन, ठीक है, वो डीप होते हैं, संकन होते हैं, इनकी जैसे यहाँ पे आप देखते हैं। देन फाइटोप्थोरा व्हिच इज लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो व्हिच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा। तो फाइटोप्थोरा में क्या होता है कि ये जो डिजीज है इसमें भी आप लीव्स पे भी सिम्टम देखते हैं और फ्रूट्स पे भी सिम्टम देखते हैं। और लीव्स पे आप ऐसे लीजन विच आर इरेग्युलर, जैसे उसमें आपने देखा अल्टरनेरिया में दे आर सर्कुलर, है ना, और उसमें कंसंट्रिक रिंग्स होते हैं, बट हियर दे आर इरेग्युलर, ठीक है, मोस्टली दे आर एट द मार्जिनल एंड, बिग पैच बन जाते हैं, और उसके पैच अगर यहाँ पे अगर वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होगी, ठीक है, रेनी सीजन होगा, लीव्स वेट होंगे, तो उस लीव के डाउन साइड पे आप देखोगे व्हाइटिश ग्रोथ, ये इस तरह की ग्रोथ देखोगे, एंड दीज आर अगेन, ये भी क्या होता है पैथोजन का, जो पैथोजन काज करता है उसके स्पोर्स, जैसे वो बनाता है स्पोरेंज, जो स्पोरेंजियम, वो ये मास होता है, ठीक है। ये भी एक, अगर आपने लीजन के बेस पे इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो इफ यू टर्न लीव डाउन यू विल सी दिस व्हाइटिश ग्रोथ डाउन साइड ऑफ द लीव। तो इसके कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगेन ये इसका फंगस जो है इसको भी हम स्पोरेंजियम के बेस पे करते हैं। जैसे आपने अभी एक फंगस देखा था पहले पीथियम, उसमें सर्कुलर स्पोरेंजियम होते हैं, बट इन केस ऑफ फाइटोप्थोरा दे आर लेमन शेप की तरह होते हैं। तो इसको हम इसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं।
देन सेप्टोरिया विच इज अगेन कॉमन डिजीज ऑफ टमेटो। तो इसमें सेप्टोरिया में अगेन यू विल सी दीज राउंड सर्कुलर लीजन्स, और उसका ये फंगस जो है ना, ये इसके जो स्पोर हैं इस तरह के होते हैं, हेड लाइक स्पोर्स। ये भी एक कॉमन डिजीज है यहाँ पे। देन इन केस ऑफ चिली वी हैव मोर प्रॉब्लम इन केस ऑफ चिली व्हेन वी से डिजीज, फंगल डिजीज। तो उसमें एक कॉमन डिजीज क्या है, ये है जिसको हम कहते हैं एंथ्राक्नोज ऑफ चिली, है ना। और ये डिजीज तब आती है जब फ्रूट मैच्योर होता है, रिलीज स्टेज पे नहीं आती है, बट ये जो मैच्योरिटी पे जब फ्रूट होता है ना, उस टाइम में डिजीज आती है। तो आपने जब आप घर में रखते हैं ना फ्रूट, इसके चिली के फ्रेश फ्रूट्स आफ्टर हार्वेस्ट, तो उसमें आपने देखा होगा समटाइम्स उसमें ब्लैक लीजन हो जाते हैं ना। ये कॉमन डिजीज है यहाँ पे, आफ्टर हार्वेस्टिंग आप यू कैन सी दिस लीजन। तो उस लीजन में फिर आप ब्लैक डॉट्स भी देखोगे, वो भी इसका एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है कि ब्लैक सैंकन लीजन्स बनेंगे, और उन ब्लैक सैंकन लीजन में स्मॉल डॉट्स, यू विल सी स्मॉल ब्लैक डॉट्स। और वो ब्लैक डॉट्स क्या होते हैं, वो फंगस का फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसके अंदर वो स्पोर बनाता है। जैसे ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, इसी में फिर ये स्पोर होते हैं, यही ब्लैक, इसी के ब्लैक डॉट्स आप इस रीजन के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉमन डिजीज है यहाँ पे। देन जैसे मैंने कहा कि कर्बिट में एक बैक्टीरियल डिजीज है यहाँ पे, और इसी तरह से चिली में भी एक बैक्टीरियल डिजीज है यहाँ पे, विच इज बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ चिली। ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। तो इसमें भी आप देखोगे ब्राउनिश लीजन, और ये जो ब्राउनिश लीजन होते हैं वो सराउंड होते हैं बाय क्लोरोटिक फॉलो। उसका बॉर्डर जो होता है, जैसे आप लीजन में देखते हैं ना, लीजन है ब्राउनिश लीजन है, और उसके सराउंडिंग में क्लोरेटिक लीजन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेटिक फॉलो। ये भी इसका और एक फूड पे भी आता है, लीफ पे भी आता है। Then another common disease in case of chili, that is Cercospora leaf spot. विल्ट तो मैंने पहले ही कहा, विल्ट में इसमें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डिजीज है दैट इज विल्ट, है ना। वो मैंने पहले ही आपको बताया कॉमन डिजीज में। तो उसके बाद फिर सर्कोस्पोरा है। सर्कोस्पोरा में अगेन ब्लैक टू ब्राउनिश रीजन्स बनेंगे, और उनके सेंटर में ग्रेइश टू वाइट एक डॉट जैसा होता है, तो दैट इज सर्कोस्पोरा। और उसके स्पोर इस तरह से होते हैं। ये तो क्रॉप स्पेसिफिक डिजीज हैं। देन वी हैव सम माइनर डिजीज आल्सो, लाइक इन केस ऑफ रबी वेजिटेबल क्रॉप्स वी हैव सम माइनर डिजीज। इन केस ऑफ रबी वेजिटेबल क्रॉप्स में हमें ज़्यादा यहाँ पे डिजीज प्रॉब्लम नहीं होती है। रेगुलर लीफ स्पॉट ये कॉमन डिजीज है। अगर हम रबी वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो उनमें ये आर्टेनिया, और आर्टेनिया में मैंने कहा कि टिपिकल डायग्नोस्टिक सिम्टम है कि उसमें कॉन्सेंट्रेटिव रिंग्स बनते हैं, और इस केस में भी वो कॉन्सेंट्रेटिव रिंग्स आप देखेंगे तो बनते हैं। देन इन केस ऑफ these crops also, rabi crops, we have also one bacterial disease and that is called as black rot. अब मैंने पहले ही आपको कहा कि there are only few diseases, 2-3 diseases हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। तो that one of them was angular leaf spot of cucurbit crops, then चिली में एक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, then this is another important disease, bacterial disease under Kashmir condition, that is black rot. और black rot का typical symptom अगर आप देखोगे क्या है, that is this V-shaped lesion, ये ऐसे वी शेप, एक टिपिकल कैरेक्टर है ब्लैक रॉट को आइडेंटिफाई करता है। इसके मार्जिन पे एक बिल्कुल वी शेप बनाता है इसका, ठीक है। और ब्लैक रॉट इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज देन फाइनली दिस रीजन टर्न्स ब्लैक, उसकी वजह से इसको कहते हैं ब्लैक रॉट, ठीक है। तो ये वी शेप रीजन आप याद रखना, जब भी आप इन क्रॉप्स में इस तरह का मार्जिन पे वी शेप वाला रीजन देखोगे, दैट मींस इट इज अ ब्लैक रॉट डिजीज कॉज ऑफ द। देन ब्रिंजल में एक डिजीज है होमोप्सिस ब्लाइट, इसको बोलते हैं होमोप्सिस ब्लाइट। तो इसमें भी यू विल सी दीज सर्कुलर इरेगुलरली सर्कुलर लीजन्स, और उनमें भी आप देखोगे देयर आर ब्लैक डॉट्स इनसाइड दैट लीजन, ठीक है। और ये ब्लैक डॉट्स अगेन दीज आर फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ फंगस, इसको बोलते हैं पिकिडिया। देन एंगुलर लीफ स्पॉट यू नो इज अ कॉमन डिजीज इन केस ऑफ बीन, ठीक है। यहाँ पे दो डिजीज बीन में ज़्यादा कॉमन है, एक है ये एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ बीन एंड दूसरा है बीन एंथ्राक्नोज, है ना। तो ये एंगुलर लीफ स्पॉट्स में, इसको एंगुलर शेप के स्पॉट्स हैं, इसलिए इसको ये लीव्स पे भी आता है और फ्रूट्स पे भी आता है। बट देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन दिस, एक तो एंगुलर लीफ स्पॉट, दूसरा है बीन एंथ्राक्नोज। बीन एंथ्राक्नोज में भी फ्रूट पे इसी तरह के लीजन आते हैं, बट इन केस ऑफ बीन एंथ्राक्नोज दे आर संकर, व्हाइल एज इन केस ऑफ दिस डिजीज एंगुलर लीफ स्पॉट दे आर नॉट संकर, ठीक है। अदरवाइज इसमें सिम्टम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि वेदर दिस इज बिकॉज ऑफ बीन एंथ्राक्नोज या बीन एंथ्राक्नोज की वजह से यहाँ एंगुलर लीफ स्पॉट की वजह से है, बट इन केस ऑफ बीन एंथ्राक्नोज दे आर संकर।
देन फाइनली मैनेजमेंट, जैसा जो मेरा टॉपिक था इट वाज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कौन सी डिजीज़ यहाँ पे कश्मीर में हमें कॉमन है वेजिटेबल क्रॉप्स में। देन फाइनली दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले जब भी हम किसी डिजीज़ का मैनेजमेंट करते हैं ना, तो वी शुड बी हैविंग नॉलेज अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एनी प्लांट मैनेजमेंट। किसी भी डिजीज़ को मैनेज करने के लिए वी कंसिडर 6 प्रिंसिपल्स, एंड दीज 6 प्रिंसिपल्स आर, वो 6 प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला जो प्रिंसिपल है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का, दैट इज एक्सक्लूजन। ठीक है, एक्सक्लूजन मीन्स व्हाट? एक्सक्लूजन क्या होता है? बाकी क्या अलग करने से आप डिजीज को या उसके पैथोजन को दूर रखते हैं। ठीक है, आप आने ही नहीं देते हैं उसको। तो ये मैं 6 प्रिंसिपल पहले आपको समझाऊं कि एक है कि आप डिजीज को आने ही नहीं देते। देन सेकंड क्या होना चाहिए हमारा कंसिडरेशन, हमारा प्रिंसिपल डिजीज मैनेजमेंट का सेकंड ये है कि इवन दो पैथोजन भी प्रेजेंट है, हमारा ससेप्टेबल क्रॉप भी प्रेजेंट है, वी विल ट्राई टू अवॉइड दैट पैथोजन। और अवॉइड कैसे करेंगे? अवॉइड इस तरह से करेंगे क्योंकि यू नो कि जब भी कोई डिजीज आते हैं 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। एक है ससेप्टेबल होस्ट होना चाहिए, दूसरा है कि पैथोजन होना चाहिए, विरुलेंट पैथोजन होना चाहिए, तीसरा तब डिजीज आएगी जब फेवरेबल कंडीशन होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि पैथोजन प्रेजेंट है, होस्ट प्रेजेंट है और एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ भी हो तो डिजीज आएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग स्कैब के बारे में जानते होंगे, एप्पल के स्कैब के बारे में, किसी सीजन में स्कैब बहुत ज़्यादा आ जाती है और किसी सीजन में बहुत कम आ जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अदरवाइज पैथोजन भी प्रेजेंट है और होस्ट भी वही प्रेजेंट है। तो बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन उस सीजन में फेवरेबल नहीं होती है तो डिजीज कम आ जाती है। तो वी कैन मैनिपुलेट दैट वेदर कंडीशन ना, वो जो एनवायरनमेंट है उस पैथोजन का फेवरेबल एनवायरनमेंट है जिसमें वो डिजीज आते हैं उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? जैसे आप ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है डिजीज को आने के लिए इम्पॉर्टेंट, तो ह्यूमिडिटी को कैसे हम कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? बाय वाइड स्पेसिंग, है ना। स्पेसिंग आप बढ़ाओगे या आप स्प्रिंकल इरिगेशन अवॉइड करोगे, है ना। या जैसे अगर कोई सॉइल बॉर्न डिजीज है उसके लिए हम क्या कहते हैं? सॉइल बॉर्न डिजीज जैसे डैम्पिंग ऑफ मैंने दिखाया आपको या विल्ट दिखाया, उनमें हम क्या कहते हैं? कौन सा कंडीशन फेवरेबल होता है उनके लिए? अगर वेट कंडीशन सॉइल में है ना, तो अगर उस वेट कंडीशन को हम अवॉइड करें, ठीक है, उसकी वजह से भी फिर डिजीज नहीं आ सकते। दैट इज अवॉइडेंस। देन इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स जब आप एक्सक्लूजन भी आपका फेल हो गया, पैथोजन रीजन में आ गया, अवॉइडेंस भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है, तो दैट इज इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मीन्स यू वांट टू इरेडिकेट द पैथोजन। आपके सॉइल में पैथोजन है, उसको आप वहां से निकालना चाहते हैं, दैट इज इरेडिकेशन। और उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, वहाँ आगे मैं बताऊंगा वेजिटेबल क्रॉप्स में वो क्या है। जैसे एक मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज की आप अलग अलग, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया क्रॉप स्पेसिफिक पैथोजेंस, है ना। एक क्रॉप का स्पेसिफिक अपना पैथोजन है कोई, अगर आप उस क्रॉप को 2-3 साल तक ग्रो ना करें, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो पैथोजन इरेडिकेट होगा क्योंकि उसको अपना होस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो इरेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से फील्ड सैनिटेशन, जो मैम ने कहा था इंशाल्लाह कि आप सबसे ज़्यादा उसके देना। व्हाई वी डू फील्ड सैनिटेशन? हम फील्ड सैनिटेशन क्यों कहते हैं? जैसे अभी हम कहते हैं फार्मर्स को एप्पल ऑर्चार्ड्स में कि आप जो भी वहाँ पे डेब्रिस है, लीफ का फ्रूट, डिजीज फ्रूट है, डिजीज ट्यूबिस है, उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करो, इट इज फील्ड सैनिटेशन। तो ये फील्ड सैनिटेशन हम किस लिए करते हैं? इसका क्या मतलब होता है फील्ड सैनिटेशन करने का? जो डिजीज वहाँ पे फील्ड में रहती है वो बिकॉज़ यू नो ये जो पैथोजन होते हैं ना, ये पैथोजन जो होते हैं ना, उनको कुछ सोर्स ऑफ सर्वाइवल चाहिए। कहीं पे अगर ये एक्सपोज हो जाए ना, ये एडवर्स कंडीशन सर्वाइव नहीं करते, तो इनको जो वो सोर्स उनके लिए क्या होता है? जहाँ पे हिडन होते हैं, जहाँ पे सर्वाइव करते हैं, दैट इज डिजीज पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। जैसे अगर स्कैब की बात हम करें तो एप्पल के स्कैब पे, लीफ पे स्कैब आते हैं, तो लीफ पे अगर लीफ वहाँ पे डिजीज लीफ है ऑर्चार्ड में, तो इट कैन सर्वाइव थ्रू दैट लीफ, है ना। इसी तरह से फ्रूट अगर होगा जिसपे स्कैब है तो उसके थ्रू भी सर्वाइव कर सकता है। और भी पैथोजन जैसे ब्रांच कहीं लगता है कोई पैथोजन, अगर वो ब्रांच वहाँ ऑर्चार्ड में रहा तो उसके थ्रू सर्वाइव करेगा। अगर हम उस सब मटेरियल को कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करें तो दैट मींस हमने वो इनॉकुलम इरेडिकेट किया, है ना। तो दैट इज व्हाई इट्स अ मेथड ऑफ इरेडिकेशन। तो इसी तरह से और भी मेथड्स हैं जो हम आगे मैं बताऊंगा उसमें। देन दिस वाज थर्ड प्रिंसिपल, है ना। देन प्रोटेक्शन। अब आपने ये तीनों प्रिंसिपल आप नहीं कर पाए, ठीक है, एक्सक्लूजन भी आपने नहीं कर पाया, अवॉइडेंस भी नहीं कर पाए, आप पैथोजन को भी इरेडिकेट, बिकॉज समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट पैथोजन। जैसे आपका कोई सॉइल में कोई पैथोजन है, ठीक है, जैसे फ्यूजेरियम में आपने अभी देखा विल्ट करता है,
या डैम्पिंग ऑफ रेजोक्यू नहीं करता है, वो सॉइल में है, ठीक है। नर्सरी में तो एनीवे हम वी कैन इरेडिकेट दैट, बट अगर बड़ा फील्ड है तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इरेडिकेट दैट पैथोजन, है कि सॉइल से हम जो भी इनोकुलम होगा उसको इरेडिकेट कर सकते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम उसके बाद क्या करें, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करें, तो उसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हमें डिजीज का पैथोजन भी है, हमारे पास ससेप्टेबल होस्ट भी हैं और कंडीशंस भी फेवरेबल हैं, फिर हम क्या करते हैं, वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप, है ना। तो प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, नॉर्मली हम प्रोटेक्ट अपने क्रॉप को बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, है ना। तो हम फंगिसाइड स्प्रे करते हैं फंगल डिजीज में, बैक्टीरियासाइड स्प्रे करते हैं बैक्टीरियल डिजीज में, या अगर कोई सॉइल बॉर्न डिजीज है जिसके चांस है कि ये रूट को इन्फेक्ट करे या स्टेम को, बिलो ग्राउंड स्टेम को इन्फेक्ट करे, तो वी गिव सीड ट्रीटमेंट, है ना। अपने सीड को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है बिफोर सोइंग द सीड, वी गिव सीड ट्रीटमेंट टू सीड, है ना। या सीडलिंग को अगर ट्रांसप्लांट करना है, वी डिप द सीडलिंग इन फंगिसाइड, ठीक है। दैट वे वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम द इन्फेक्शन। देन अगर ये प्रोटेक्शन भी फेल हुआ, ठीक है, अगर उसके बाद भी किसी तरह से इन्फेक्शन आपकी क्रॉप में हुआ, देन आपका फिफ्थ प्रिंसिपल है देन थेरेपी। थेरेपी मींस यू इरेडिकेट द पैथोजन आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। यू ट्रीट द प्लांट आफ्टर द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ प्लांट में तो उसके बाद आप उसको ट्रीट कर रहे हो। तो हाउ डू यू ट्रीट प्लांट आफ्टर इन्फेक्शन, कैसे करते हैं, बाय स्प्रेइंग फंगिसाइड्स, है ना। सिस्टमिक फंगिसाइड करते हैं, या कैंकर अगर कोई ब्रांच में तो उसको रिमूव करते हैं उस इन्फेक्शन को, देन वी अप्लाई पेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज थेरेपी। देन एक और प्रिंसिपल है दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि सब कुछ फेवरेबल हो, बट इफ यू हैव अ रेजिस्टेंट वैरायटी, अगर आपके पास रेजिस्टेंट वैरायटी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। और ये जो सॉइल बॉर्न डिजीज है उनके लिए तो रेजिस्टेंट वैरायटी, देयर इज रेयरली एनी रेजिस्टेंट वैरायटी, कुछ ही रेजिस्टेंट वैरायटी है, बट अगेंस्ट अदर डिजीज वी हैव सम रेजिस्टेंट वैरायटी। आई डोंट नो अबाउट कश्मीर कंडीशन वेदर वी हैव एनी resistant variety against these disease, but there are resistant varieties. If you can get those resistant variety, you can grow them, and that's the manageable disease. Okay, these are basic 5 principles. So now let us try to see the management of vegetable disease जो हमने अभी तक डिस्कस की, उनको इनके 6 प्रिंसिपल के लाइट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ना। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाज एक्सक्लूजन। तो हम अपने रीजन में, कश्मीर में ये जो डिजीज आते हैं, इनको हम पहला प्रिंसिपल अप्लाई करके कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं एक्सक्लूड, हम कैसे किसी पैथोजन करेंगे, हम किसी भी पैथोजन को, किसी भी डिजीज को अपने रीजन में आने ही ना, तो वो किस तरह पॉसिबल है, हाउ इट्स पॉसिबल। कोई है ऐसा मेथड जो हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत सारे पैथोजन को हमने रोका है आने से, क्या है, सर्टिफाइड सीड्स। वेरी गुड, सर्टिफाइड सीड, है ना। जो हम सीड यूज करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, वो कहाँ से आता है, या तो हम यहाँ लोकली बनाते हैं या बाहर से आता है ना। इफ दैट सीड इज सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मींस दैट उसमें सर्टिफाइड होता है कि ये डिजीज फ्री है, इसमें कोई डिजीज के इनोकुलम नहीं है ना। तो अगर वो सीड हम यूज करेंगे, उससे भी हम पैथोजन को, डिजीज को दूर रख सकते हैं। हाँ, वो या तो ट्रीटेड हो, या तो वो वहाँ से सीड प्रोड्यूस किया है जहाँ पे वो डिजीज नहीं होती है, ठीक है, वहाँ से सीड आया है, या फिर उसको इस तरह से ट्रीट किया गया है कि उसमें कोई इनोकुलम नहीं रहा। या वन मोर इम्पॉर्टेंट मेथड इन केस ऑफ दिस एक्सक्लूजन इज दैट इज क्वारंटाइन। क्वारंटाइन इज इम्पॉर्टेंट। क्वारंटाइन मीन्स व्हेनेवर यू इंपोर्ट, जब भी आप कोई प्लांटिंग मटेरियल या सीड इंपोर्ट करते हैं तो उसका पहला वहाँ पे एंट्री पॉइंट पे क्वारंटाइन होता है। देन व्हेन इट एंटर्स द रीजन, जैसे अभी हम ज्यादा प्लांट कौन सा इंपोर्ट करते हैं कश्मीर में, हाई डेंसिटी, है ना, वो हम इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो उसके लिए क्वारंटाइन है। उसके लिए जिसको हम कहते हैं पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन मीन जब ये आपके जहाँ पे हमें लगाना है प्लांटिंग मटेरियल, वहाँ पे जब एंटर होता है, बिफोर प्लांटिंग इन ऑर्चर्ड्स, इन फार्मर्स ऑर्चर्ड्स, वही क्वारंटाइन इट, ठीक है, इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन कैसे करते हैं हम, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन, हम इस प्लांटिंग मटेरियल को अलग किसी लोकेशन पे ग्रो करते हैं पहले 1-2 साल तक, ठीक है, उस लोकेशन पे जहाँ पे सराउंडिंग में वो वाला प्लांटिंग मटेरियल नहीं होगा फार्मर्स का। तो जब हम 2 साल तक या 1 साल तक उसको वहाँ पे आइसोलेशन में ग्रो करते हैं, वी सी देन कि इसमें कोई डिजीज तो वहाँ से नहीं आई है। तो लोकेशन कैसे चूज करते हैं? हाँ, वो मैं बताऊंगा वो कैसे करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एप्पल इंपोर्ट होता है, तो उसके लिए यहाँ पे जो इंपोर्ट करते हैं ना, वो प्राइवेट पार्टीज हैं, 5-6 प्राइवेट पार्टीज जो इंपोर्ट करते हैं। तो उनको क्या करना होता है बिफोर इंपोर्ट, उनको
जो हर एक स्टेट में जो ऑफिसर होता है इसके लिए, उसको हम बोलते हैं DIA मीन डेजिग्नेटेड इंस्पेक्शन अथॉरिटी। वो हर एक स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका जो प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, उसका जो हेड होता है वो होता है DIA। तो जिसको भी इंपोर्ट करना होगा मटेरियल, उसको अप्रोच करना है DIA को, हेड प्लांट पैथोलॉजी को। तो हेड प्लांट पैथोलॉजी क्या करते हैं, वो पहले जो इंपोर्टर होता है वो उसको कहता है मुझे ये प्लांट मटेरियल इंपोर्ट करना है, ठीक है। वो एक फॉर्म भरता है, उसमें वो मेंशन करता है कौन सा प्लांट मटेरियल मुझे लाना है और कितना क्वांटिटी लाना है। तो और वो उस फॉर्म में ये भी मेंशन करता है मैं इसको कहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो जब वो अप्लाई करता है तो उसके बाद DIA अपना रिप्रेजेंटेटिव या खुद जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन को जहाँ उसको प्लांट मटेरियल क्वारंटीन करना है वहाँ देखता है, इंस्पेक्टर करता है उस लोकेशन को। If he is satisfied, if he or she is satisfied, अगर वो satisfied होता है कि नहीं इसका जो इसने मुझे जो लैंड दिखाया है जहाँ पे अपने प्लांट मटेरियल को क्वारंटीन करेगा 1-2 साल तक, ये आइसोलेटेड है, ठीक है। ये इसके सराउंडिंग में 1 किलोमीटर तक कोई प्लांटिंग मटेरियल, सिमिलर प्लांटिंग मटेरियल नहीं है। जैसे अगर उसको एप्पल करना है तो एप्पल 1 किलोमीटर रेडियस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें क्वारंटीन में गाइडलाइंस है कि उसमें 1 किलोमीटर, अगर वो एप्पल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एप्पल 1 किलोमीटर तक नहीं होना चाहिए। अगर वो स्टोन फ्रूट्स जैसे चेरी, या हम चेरी भी करते हैं या बहुत सारे स्टोन फ्रूट्स भी करते हैं, इवन वॉलनट भी इंपोर्ट करते हैं, तो अगर उसको वॉलनट वहाँ पे लगाना है तो उसको वॉलनट सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, DIA की। That means the importer should have a lot of land. जितना वो क्वांटिटी इंपोर्ट करेगा उसके लिए उसको सफिशिएंट लैंड होना चाहिए। अगर वैसे हम 160 ट्रीज लगाते हैं मेरे ख्याल से एक कनाल में, एक कनाल। तो अब एक कनाल आपने में तो मकाई लाने होते हैं। नहीं, आप वो तो है कि मेन ऑर्चर्ड में हम वो स्पेस करते हैं ना 160 प्लस। यहाँ जब आप नर्सरी में लगाते हैं साजा लगाते हैं, उसमें तो उतना स्पेस नहीं रखना है ना। तो उतना लैंड उसके पास होना चाहिए कि जितना उसको क्वांटिटी मटेरियल इंपोर्ट करना है वो वहाँ पे वो एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वारंटीन होता है। तो जब सेटिस्फाइड DIA हो जाएगा कि इसके पास वो लैंड है, देयर आर अदर गाइडलाइंस आल्सो, यही नहीं है एक कि आइसोलेशन होना चाहिए, बाकी उसके पास पॉली हाउस होनी चाहिए जिसमें वो मटेरियल लगाएगा पहले, देन उसके पास फेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फेंसिंग, ठीक है। तो और भी बहुत सारी कंडीशन है, वो DIA जब सारी कंडीशन देखता है देन ही इशूज एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म P-90। तो उस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हाँ यू कैन इंपोर्ट मटेरियल, आपके पास लोकेशन है, आप क्या इंपोर्ट कर सकते हो। देन वो जो प्रोसेस आगे होता है वो इंपोर्ट फाइनली इंपोर्ट मटेरियल करता है, और इंपोर्ट मटेरियल करने के बाद जब वो मटेरियल यहाँ पे आता है वो इन्फॉर्म करता है DIA को अगेन कि मेरा मटेरियल आ गया। देन इन प्रेजेंस ऑफ DIA वो वहाँ पे उस लोकेशन में वो मटेरियल लगाता है, और लगाने के बाद फिर एक अगर खराबी होगी, हाँ दिस इज अगर वो सारे का सारा लॉट ही DIA has authority to destruct दैट ऑल मटेरियल, उसको अथॉरिटी सारा लॉट ही खराब हुआ। हाँ, और अगर उसको लगा कि कोई ऐसा थ्रेट है, कोई क्वारंटीन पेस्ट इसमें है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता है सब मटेरियल, ठीक है। तो 1 साल तक वो उस मटेरियल को मॉनिटर करता है DIA, जब तक वो वहाँ क्वारंटीन लोकेशन में है। तो अगर उसको 1 साल तक लगा कि इस पेस्ट फ्री, इसमें कोई थ्रेट नहीं है, कोई क्वारंटीन पेस्ट नहीं है, देन अगेन वो इशू एक सर्टिफिकेट करता है, रिलीज को बोलते हैं रिलीज सर्टिफिकेट। तो रिलीज फिर वो मटेरियल हो जाता है, और देन वो इंपोर्टर जो है वो कहीं भी उस प्लांट मटेरियल को ले जा सकता है, ठीक है। तो 1 साल तक उसको वो वहाँ से क्वारंटीन लोकेशन से नहीं निकालना है बाहर। दिस इज हाउ वी क्वारंटीन। बट इन केस ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ नहीं पता कि, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट तो नहीं होता है सीड, बट हम डिफरेंट स्टेट से लाते हैं, और डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे लोकल क्वारंटीन नहीं है। जैसे अगर आप फ्रूट के केस में देखें, हम इंपोर्ट जो मटेरियल करते हैं उसका क्वारंटीन करते हैं ना, जो प्लांटिंग मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उसका तो क्वारंटीन करते हैं, बट जो मटेरियल डिफरेंट स्टेट से आता है, जैसे हिमाचल से आता है मटेरियल, बहुत सारा मटेरियल हिमाचल से आता है, उसका तो कोई क्वारंटीन नहीं है ना। इसी तरह से जो आप सीड लाते हैं यहाँ पे, वो तो आप डिफरेंट स्टेट से लाते हैं तो उसका भी कोई क्वारंटीन नहीं है। दैट वे देयर इज थ्रेट, उसकी वजह से थ्रेट है। थ्रेट क्यों है? क्योंकि हो सकता है उस स्टेट में कोई डिजीज हो जो हमारे यहाँ पे वो डिजीज ना हो, तो उस सीड के थ्रू या उस कोई भी जो प्लांटिंग मटेरियल प्रोपेगेटिंग मटेरियल लाते हैं उसके थ्रू वो डिजीज यहाँ पे आ सकती है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर क्वारंटीन हो, प्रॉपर ये जो हम सर्टिफाइड सीड यूज करें, दैट वे वी कैन एक्सक्लूड द पैथोजन, हम डिजीज को दूर रख सकते हैं। देन अवॉइडेंस, अब हम वेजिटेबल में अवॉइडेंस कैसे करते हैं? जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे हमें अगर सॉइल बॉर्न डिजीज आती है, सॉइल बॉर्न डिजीज मीन्स उनका पैथोजन सॉइल में रहता है। जैसे उसमें मैंने आपको डैम्पिंग आप कहा, विल्ट कहा, देयर पैथोजन्स आर देयर इन द सॉइल। तो उनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर पैथोजन हैं बट वी वांट टू अवॉइड दैट डिजीज, हम अवॉइड करना चाहते हैं।
सीड ट्रीटमेंट से कर सकते हैं कुछ, और बिकॉज जिस वो सीड ट्रीटमेंट जो है ना वो दूसरा प्रिंसिपल है ना, अवॉइडेंस में हमें ये है कि हाँ जैसे हम साइट सिलेक्शन करते हैं, वेरी गुड। तो अगर हम डैम्पिंग ऑफ कॉमन प्रॉब्लम है, विल्ट कॉमन प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे हम, कैसे अवॉइड करेंगे इसको? हम ऐसा सिलेक्शन लैंड करेंगे जहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है। तो वाटर लॉग में मैंने कहा कि सॉइल बॉर्न डिजीज जो है डैम्पिंग विल्ट ये ज़्यादा तब आती है जहाँ पे मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो, तो उस कंडीशनों को हम अवॉइड कर सकते हैं। या हम खुद भी जो हम फ्रीक्वेंट इरिगेट करते हैं क्रॉप को, है ना, हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं, अगर उसकी वजह से ज़्यादा डिजीज आते हैं तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ना, हम फ्रीक्वेंट इरिगेशन ना दें, फ्लड इरिगेशन ना दें, प्रॉपर स्पेसिंग रख सकते हैं ना, दूर दूर प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर अवॉइडेंस के बाद इरेडिकेशन हम इनको इन वेजिटेबल क्रॉप्स में कैसे करेंगे? अब इरेडिकेशन हम कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। सर ये क्लीन कल्टीवेशन कैसे? क्लीन कल्टीवेशन जैसे फील्ड सैनिटेशन है ना, फील्ड सैनिटेशन में आपने जो भी डेब्रिस है वहाँ पे डिजीज का डेब्रिस है लास्ट ईयर का, तो उसको कलेक्ट करके क्लीन कल्टीवेशन। देन इरेडिकेशन हाउ इरेडिकेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इसमें पहला है कि क्रॉप रोटेशन। अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू आपको कुकुरबिट ज़्यादा आता है तो डोंट ग्रो कुकुरबिट देयर, ग्रो एनी अदर क्रॉप। अगर आपके कुकुरबिट में डाउनी मिल्ड्यू ज़्यादा आता है तो बेटर है कि आप कुकुरबिट की जगह उस प्लाट में कोई और क्रॉप लगाएं, ठीक है। 2-3 साल तक आपने ग्रो किया तो दैट वे जो पैथोजन वहाँ पे होगा वो इरेडिकेट होगा। आपके किसी फील्ड में चिली विल्ट ज़्यादा आता है, डोंट ग्रो चिली देयर, ग्रो एनी अदर सॉइललेस क्रॉप, है ना, या जैसे सॉइललेस क्रॉप्स में तो सॉइल मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो इससे फिर मैनेजमेंट सॉइल मैनेजमेंट भी होता है और डिजीज भी कम आ जाती है। दैट इज इरेडिकेशन। देन इरेडिकेशन यू कैन डू आल्सो बाय यूजिंग बायोकंट्रोल एजेंट्स, है ना। बायोकंट्रोल एजेंट, डू यू नो व्हाट इज बायोकंट्रोल एजेंट? यू नो दीज आर कॉज्ड बाय फंजी बैक्टीरिया, है ना, इन्हीं से होता है ना डिजीज, पैथोजेन्स। तो कोई ऐसा ही ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जो डिजीज ना करता हो, जो पैरासाइट करता हो इन पैथोजेंस। तो पैथोजन को कैसे वो इरेडिकेट करेगा? अगर हमने सॉइल में पैथोजन भी है, हमने सॉइल में अपना बायोकंट्रोल भी डाला, जैसे हम नॉर्मली बायोकंट्रोल कौन सा यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, उनके फॉर्मुलेशंस भी आते हैं, हमारे डिवीजन में भी ट्राइकोडर्मा है। तो जब हमने उसको भी सॉइल में यूज किया तो ये जो बायोकंट्रोल होती है ना, इनका एक कैरेक्टर होता है कि दे आर फास्ट ग्रो, ठीक है, वो फास्ट मल्टीपल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो कंपटीशन बिटवीन पैथोजन और इस बायोकंट्रोल में होता है ना, अल्टीमेटली जो पैथोजन होता है वो सप्रेस हो जाता है, बिकॉज देयर इज कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन, कंपटीशन फॉर स्पेस। और ये बायोकंट्रोल एजेंट जो है कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो पैथोजन सप्रेस हो जाता है, किल हो जाता है। और कुछ बायोकंट्रोल ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली पैरासाइज करते हैं फंगस, उसको पैरासाइज करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और उसको फाइनली किल करते हैं। तो दीज आर मेथड्स ऑफ इरेडिकेशन। देन प्रोटेक्शन। अब जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नाउ वेजिटेबल को हमें अपने जो सीड है या सीडलिंग्स है या प्लांट है उसको प्रोटेक्ट करना है इन्फेक्शन से। तो जैसे अगर हम सीड सो कर रहे हैं तो सीड को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंगिसाइड्स के ट्रीटमेंट ऑफ बायोकंट्रोल एजेंट्स। अगर आपने अपने सीड को बायोकंट्रोल के यूज से उसको कवर करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है, दैट विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन, वो पैथोजन का इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करेंगे। इसी तरह से व्हेन यू आर ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स, जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में भी अगर आप अपने सीडलिंग्स को डिप करें फंगिसाइड में या बायोकंट्रोल एजेंट्स में तो उससे भी वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। देन थेरेपी मीन्स जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका चिली का कोई प्लांट है तो उसमें आप देख रहे हो कोई विल्ट का सिम्टम आपको नजर आ रहा है ना, देन आपको थेरेपी करना है, ट्रीट करना है। तो व्हाट वी डू दैट टाइम, हम उस टाइम क्या करते हैं, आपके विल्ट नजर आ रहे हैं आपको, तो दैट मीन्स इरेडिकेशन प्रिंसिपल भी फेल हुआ है, आपका प्रोटेक्शन भी फेल हुआ है, इवन देन यू सी सम सिम्टम्स ऑफ विल्ट। तो क्या करेंगे उस स्टेज पे, वी गो फॉर ट्रेंचिंग फंगिसाइड, है ना। उसके बाद हम फंगिसाइड, जैसे विल्ट डिजीज में क्या करेंगे फंगिसाइड, जैसे कार्बेंडाजिम फंगिसाइड है उसको हम यूज करते हैं, है ना। जैसे डैम्पिंग ऑफ डिजीज अगर होगी तो उसमें हम क्या करते हैं, मेटालेक्सिस करते हैं। तो आपको फंगिसाइड से फिर उसको ट्रीट करना है। देन रेजिस्टेंट वैरायटी, अगर आपके पास आप कोई सीड जो यूज कर रहे हैं, इफ इट इज लेबल्ड एज रेजिस्टेंट वैरायटी अगेंस्ट सम पर्टिकुलर डिजीज, जो आपकी ऐसा नहीं है कि आपको किसी और डिजीज के लिए जो यहाँ पे है ही नहीं तो उसके लिए आप रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करो, ऐसा नहीं है। आपके रीजन में जो कॉमन डिजीज है, जो इंपॉर्टेंट डिजीज आपके रीजन में है, उसके अगेंस्ट कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटी है, यू कैन ब्रिंग दैट वैरायटी एंड यू ग्रो दैट इफ इट हैज अदर क्वालिटी पैरामीटर्स आल्सो, गुड क्वालिटी पैरामीटर्स। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेजिस्टेंसी देखो और उसमें बाकी कमर्शियल कैरेक्टर ना हो, तो उसके पास उस वैरायटी में अदर कैरेक्टर भी होनी चाहिए और
साइमल्टेनियसली शुड बी रेजिस्टेंट अगेंस्ट दैट डिजीज, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द सॉइल बॉर्न डिजीज। इसी तरह से आपके यही प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं जो फॉइलर डिजीज होते हैं। हाँ, ये जो एक थोड़ा सा मैंने आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो मैंने आपको बताया, और उसको फिर कौन से बायोलॉजिकल कंट्रोल अवेलेबल है अगेंस्ट सॉइल बॉर्न डिजीज, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस है, सीडोमोनास है, और इनको हम यूज कैसे करते हैं, इन बायो कंट्रोल को हम यूज कैसे करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स। हम सीड के थ्रू भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट देके या सीडलिंग ट्रीटमेंट देके सीडलिंग को ट्रीट करेंगे, या फिर डायरेक्ट टू सॉइल एप्लीकेशन। और डायरेक्ट टू सॉइल एप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वी ग्रो दीज बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑन वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम, ठीक है, जो हम एफआईएम जो अपने प्लांट्स में यूज करते हैं ना, फील्ड में यूज करते हैं, उससे पहले हम बायोकंट्रोल एजेंट को ही ग्रो करेंगे। वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम जो होगा उसको हम पहले उस पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई दैट एफआईएम इन द फील्ड, ठीक है। उस तरह से क्या होगा, ये जो बायोकंट्रोल एजेंट है ये हमारे फील्ड में आ जाएगा और इट विल प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स। और उसको हम क्या करते हैं, वही 1 kg फॉर्मुलेशन ट्राइकोडर्मा की लानी है, उसको 50 kg वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम में मिक्स करना है। फॉर्मुलेशन आते हैं ट्राइकोडर्मा के, यहाँ पे भी हैं अवेलेबल, तो उसका 1 kg आपको 50 kg एफआईएम में वेल डिकम्पोज्ड एफआईएम में मिक्स करना है। देन वी हैव टू कीप इट फॉर 15 डेज। आप 15 डेज पे उसको रखो, सो दैट इट इज मल्टीप्लाइड विद एफआईएम, एफआईएम में अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद आप फिर उसको अपने फील्ड में जिस तरह से भी रिकमेंडेशन है उसकी एफआईएम की पर्टिकुलर क्रॉप में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से जैसे मैंने सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए आपको कहा कि कौन कौन से मेथड्स हैं, इसी तरह से आपके यही अप्लाई होते हैं जो बाकी फॉइलर डिजीज होते हैं ना, जो जैसे आपने पाउडरी मिल्ड्यू देखा, डाउनी मिल्ड्यू देखा, तो उसमें भी आपको एक्सक्लूजन है, क्वारंटीन प्रॉपरली करना है, तो अवॉइडेंस करनी है, ठीक है, साइट सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। जन जैसे बहुत सारी डिजीज हमें आती हैं जब लीफ वेट होगा, ठीक है, जो भी फंगल डिजीज होती है ना वो ज़्यादा आती है जब भी लीफ वेट होगा। तो वेट कंडीशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जो हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हैं ना अंडर प्रोटेक्टिव कंडीशंस, तो उसमें हम स्प्रिंकलर इरिगेशन अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया तो लीफ वेट ज़्यादा रहेगा, तो इस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं डिजीज को। जैसे मैंने कहा स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, उससे ह्यूमिडिटी कम होंगी। देन इरेडिकेशन में भी अगेन क्रॉप रोटेशन है, फील्ड सैनिटेशन आपको प्रॉपरली करना है। फील्ड सैनिटेशन में आपको ये चीज़ याद रखना है कि डिजीज किस पार्ट पे आती है, ठीक है, ये जो डिजीज है किस पार्ट पे आती है उसको आपको फील्ड में नहीं रखना, क्योंकि अगर उस पार्ट पे डिजीज आई है तो उसमें इनोकुलम रहेगा ही रहेगा, तो उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है। देन फैलोइंग इज वन प्रैक्टिस, आप खाली रखो 1-2 साल तक किसी उस फील्ड को, सो दैट पैथोजन इज इरेडिकेटेड। देन प्रोटेक्शन इन केस ऑफ सॉइल बॉर्न डिजीज इट वाज बाय ड्रेंचिंग फंगिसाइड्स, जैसे मैंने भी आपको कहा कि अगर सॉइल बॉर्न डिजीज है उसमें हम क्या करते हैं, हम वी ड्रेंच द फील्ड, बट इन केस ऑफ फॉलियर डिजीज वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स, है ना। तो वो पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं वो मैंने लिस्ट इसमें दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुकुरबिट क्रॉप्स में मैंने कहा पाउडर मिल्ड्यू, सो इफ पाउडर मिल्ड्यू यू हैव टू ट्रीट द पाउडर मिल्ड्यू, आपको पाउडर मिल्ड्यू रीज ट्रीट करनी है। देन फंगिसाइड इज हेक्सोकोनाजोल है, या ट्राइएडिमाफॉन है, या और एक अच्छा फंगिसाइड है जो मैं भूल गया इसमें लिखना, दैट इज फिलिसोलोजाल। तो उस फिलिसोलोजाल का आपको जस्ट 20 ml 100 लीटर में डालने हैं, उससे आप अपनी क्रॉप को स्प्रे करो, अगर उस पर पाउडर मिल्ड्यू है तो वो पाउडर मिल्ड्यू ठीक हो जाएगा। इसी तरह से डाउनी मिल्ड्यू है, ठीक है, तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेटालाइजर 72 WP at the rate of 0.2% और even you can go for 0.25% also. 0.2% means 2 gram in 1 liter. Then angular leaf spot है, तो angular leaf spot से बैक्टीरियल डिजीज, ये फंगल डिजीज नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैक्टीरियासाइड। तो उसके लिए एक बैक्टीरियासाइड है सिट्रोसाइक्लिन at the rate of 0.02%. देन अल्टरनेटिव मैंने उसमें कहा कर्पिस पे, उसके लिए आप मैनकोजेब भी स्प्रे कर सकते हो, और अगर ज़्यादा सीवियरिटी है देन यू कैन स्प्रे हेक्सोकोनाजोल। इसी तरह से टमाटो में अर्ली ब्लाइट है, तो अर्ली ब्लाइट के लिए हम स्प्रे मैनकोजेब और हेक्सोकोनाजोल। इसी तरह से लेट ब्लाइट में अगेन उनके स्प्रे मेटालाइजर एमजेड at the rate of 0.2%. सब्टूरल लीफ स्पॉट मैंने टमाटो में कहा, उसके लिए मैनकोजेब 75 WP और कार्बोनेजिम। चिली में अगर विल्ट है तो कार्बोनेजिम हम उससे हम ड्रंच करते हैं, या कार्बोनेजिम प्लस मैनकोजेब एक कॉम्बी फॉर्मुलेशन है, उससे हम ड्रंच कर सकते हैं। देन एंथ्राक्नोज जो मैंने कहा इसमें चिली में आती है डिजीज, तो उसके लिए आप यू कैन स्प्रे मैनकोजेब 75 WP at the rate of 0.3%, और यू कैन स्प्रे कार्बोनेजिम at the rate of 0.05, सॉरी इट इज 0.1%, 0.1% means 1 gram in 1 liter,
or sometimes we spray it at 0.05%. 0.05% means 2 gram in 1 liter. So this was all about the presentation. आउटडोर फार्मिंग का हाँ ये सारा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडोर ग्रीन हाउस कैसे चलता है? ये एक्चुअली ये जो देयर आर सम डिजीज विच आर अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन, जैसे मैंने आपको ये जो डिजीज है ना, मोस्ट ऑफ देम कम अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन. तो प्रोटेक्टेड कंडीशन में मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम. जो मैंने ये मैनेजमेंट प्रैक्टिस बताई ना, ये फील्ड में भी अप्लाई होती है, आपके प्रोटेक्टेड कंडीशन में अप्लाई होती है. बट प्रोटेक्टेड कंडीशन में एक चीज होता है कि you have favorable temperature, है ना. प्रोटेक्टेड कंडीशन में आपका टेम्परेचर भी हाई होता है, which is favorable for these type of disease. Even sometimes there is high humidity inside the protected condition, तो वो भी इन disease के लिए favorable होता है. तो you have to maintain that, है ना. आपको प्रोटेक्टेड कंडीशन में हाई ह्यूमिडिटी होनी नहीं चाहिए, उसके लिए आपको वेंटिलेशन प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो उसमें प्रोटेक्टेड कंडीशन में कुछ डिजीज ऐसी आती है ज़्यादा, जिनके लिए आपको ये हाई टेम्परेचर या हाई ह्यूमिडिटी चाहिए. तो मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम अंडर फील्ड कंडीशन एज अ प्रोडक्ट. और कोई क्वेश्चन? कोई भी डिजीज आती है ना, आप ओपन कंडीशन का बोले या प्रोटेक्टेड का बोले, अगर आपको लगता है कि आप कोई खास डिजीज फेस करते हैं, आप सर से पूछ सकते हैं. सर मैनेजमेंट ऑफ रूट रॉट इन केस ऑफ एप्पल. इनके साथ आप देखो, मैनेजमेंट हम जब कहते हैं ना, इट शुड बी ऑलवेज इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मींस एवरी पॉसिबल मैनेजमेंट ऑप्शन जो भी आपके पास है वो आपको यूज करना है. इट इज नॉट ओनली फंगिसाइड कि आप सिर्फ फंगिसाइड करो यूज, वो नहीं. तो सबसे पहले रूट रॉट, फिर आपने अगर देखा होगा कि रूट रॉट कहाँ पे ज़्यादा आता है, डैम जहाँ पर ना बोला है. और हमने देखा है यहाँ पे कश्मीर में जो भी कन्वर्जन हुआ है ना पैडी फील्ड्स का, ऑर्चर्ड बनाने में, वहाँ पे हमने रूट रॉट ज़्यादा किया. व्हाई? क्योंकि उन फील्ड्स में जो वाटर होता है ना, अदर इट इज रेन वाटर या आप जो इरिगेट करते हो, फ्लड इरिगेशन करते हो, वो ज़्यादा देर तक सॉइल में रहता है, मॉइस्ट रहता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं सॉइल में पैथोजन को इन्वेट करने के लिए, या फिर रूट अगर वाटर ज़्यादा स्टैग्नेट होगा वहाँ फील्ड में, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन हो जाती है ना. तो उसकी वजह से रूट किल हो जाते हैं और उनमें फिर पैथोजन इजीली एंटर करता है. तो फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू सिलेक्ट दैट लैंड फॉर रूट रॉट, दिस मैनेजमेंट ऑफ रूट रॉट की विच इज जिसमें ज़्यादा वाटर स्टैग्नेशन ना हो. देन इसमें फिर आपको देखना है कि ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है. अगर जिनको भी हमने रिकमेंड किया ना, ये अब है कि जिसने बनाया आर्चर्ड, किसने अब आर्चर्ड बनाया, उसको ये रूट रॉट की प्रॉब्लम है, तो उसको फिर हम रिकमेंड करते हैं कि यू मेक ड्रेनेज चैनल्स. ठीक है, उसको ड्रेनेज चैनल्स आर्चर्ड में इस तरह से बनानी है सो दैट जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेन हो जाए और जो उसका आर्चर्ड होगा वो ज़्यादा उसमें वाटर स्टैग्नेशन ना हो. देन फाइनली अगर उसके बाद भी डिजीज आती है, हाँ एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि हम अब जो नए आर्चर्ड बन रहे हैं ना, बहुत सारे आर्चर्ड अब हाई डेंसिटी के आर्चर्ड भी बन रहे हैं, या कोई अपना आर्चर्ड नया लगा रहा है, तो एट दैट टाइम जब वो पिट बनाता है और ट्रांसफर नहीं करता है, बेटर इसकी एट दैट टाइम ही विल अप्लाई. जो मैंने एडिस में दिखाया आपको, ट्राइकोडर्मा उसको मल्टीप्लाई करना है FIM में, तो उसी FIM को उस पिट्स में यूज करना है सो दैट योर बायो कंट्रोल इज देयर एंड दैट बायो कंट्रोल प्रोटेक्ट्स योर दिस एप्पल ट्री फ्रॉम रूट रॉट. ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और इसको हम रिकमेंड भी करते हैं और फार्मर यूज भी करते हैं. तो इट इज फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, आप अपने जब बायो कंट्रोल आपने यूज किया, दैट विल प्रोटेक्ट योर प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट. बट उसके बाद भी अगर रूट रॉट आता है, देन इट्स ट्रेंच. उसके बाद आपको कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ट्रेंच योर प्लांट विद पेस्टिसाइड्स. दूसरा सवाल है कि रूट्स को खत्म करते हैं. रोडेंट्स में एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कश्मीर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोडेंट्स की. और आपका प्रेजेंटेशन है एंटोमोलॉजी से, कल वो एक्सपर्ट आपको रोडेंट्स के बारे में बताएगा. वो रोडेंट्स आउट ऑफ माय प्रेजेंटेशन की वो ऐसे नॉर्मली बट रोडेंट्स का आपका वो तो है यहाँ पे प्रॉब्लम. Conjugal control as well. क्या क्या है सॉरी एफिड्स की प्रेजेंटेशन ना, पूरा ये वॉलियम्स हम इरेडिकेट आप करते हैं. एफिड्स की प्रॉब्लम नहीं, वो तो फंगिसाइड है ना. एक्चुअली दे आर इंसेक्ट है ना, क्योंकि हम ऑर्गेनिक वहाँ पे ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिक में एक है eradicate- इंसेक्टिसाइड दैट इज नीम. यू कैन यूज हाँ, नीम. neem आप इनका प्रेजेंटेशन है जरा. नीम एक्सट्रैक्ट मिलता है. एक इज व्हाट सॉइल इफ यू आर डूइंग ऑर्गेनिक यू कैन यूज नीम. एक्सट्रैक्ट नीम एक्सट्रैक्ट आता है, व्हाट उसमें लिक्विड दैट कैन कंट्रोल.
Otherwise, inorganic में आता है imidacloprid, that is the best for this flies. If you are doing organic farming, then आप वही नहीं यूज कर सकते। और अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करते हैं तो यू कैन यूज इंसेक्टिसाइड। और जो वो मतलब अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं ना, जो ट्रैप्स होते हैं जैसे येलो ट्रैप्स, ब्लू ट्रैप्स, एफिड्स के लिए और व्हाइट फ्लाइज के लिए, वो भी काफी ट्रैप्स काम। मैम ट्रैप्स में हम फ्लावर्स का ज्यादा करते हैं ना, वगैरह वो ट्रैप्स लगाते हैं। नहीं, you can नहीं, do that anywhere. ये फंगल ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। वो हो जाता है ना, जैसे हमारे भी यहाँ पॉली हाउस में होता है, पहले एफिड आ जाता है जी। एफिड के बाद उसके वो साथ ब्लैक हाँ, कलर का exactly, हाँ वो ना स्लिप होता है और उस पर कुछ फिर मोल्ड्स आ जाते हैं, वो उसकी वजह से हो जाती है। बहुत ज्यादा secondary हाँ, वो बहुत secondary। ज्यादा इसका इन्फेस्टेशन उनकी है कोई अंडमान की प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, कल एक्चुअली रखी थी टाइम कांस्टेंट की वजह से ना। तो उसमें आप ये थोड़ा डिस्कस करना है जिसका कलर क्लियर। Sir, precautions for chilies. चिल्ली का किस डिजीज के अगेंस्ट? यूजुअली यहाँ सर फिजेरियम विल्ट ही आता है। देखो जो चिल्ली का क्रॉप है ना, यहाँ पे ज़्यादा कश्मीर में हमें जो प्रॉब्लम है, दो डिजीज इंपॉर्टेंट है उसमें। एक है चिली विल्ट जो करता है, सेकंड इज एंथ्राक्नोज। ये दो कॉमन डिजीज है। बाकी भी डिजीज जो मैंने दिखाई वो माइनर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टू डिजीज आर इंपॉर्टेंट। एक तो चिली विल्ट, दूसरा एंथ्राक्नोज। बट ये जो चिली विल्ट के लिए अगर आपको मैनेजमेंट करना है ना, तो फर्स्ट है कि आप जो नर्सरी बनाते हैं चिली के लिए, दैट शुड बी रेज्ड, क्योंकि चिली विल्ट डिजीज जो है ना, ये सॉइल बार डिजीज है और ये डिजीज तब ज़्यादा आती है जब मॉइस्ट कंडीशन सॉइल। तो जब आप नर्सरी बनाते हैं शुड बी रेज्ड नर्सरी, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मॉइस्चर उसमें वाटर स्टैग्नेशन नहीं होगी, तो ये डिजीज कम आती है। बिकॉज ये डिजीज नर्सरी से ही भी स्टार्ट होती है, नर्सरी में भी विकास है। तो और सोइंग के टाइम आपको क्या करना है, जब आप सो करते हैं सीड, उसको ट्रीट करना है फंगिसाइड से, ठीक है। 1 ग्राम आपको फंगिसाइड लेना है कार्बोनिल, उसको 1 लीटर वाटर में डालना है और उसमें आपको सीड को ट्रीट करना है, ठीक है। फिर उसको ड्राई करके सोइंग, उसके बाद फिर सोइंग करना है। तो वन थिंग इंपॉर्टेंट है इसकी, एक तो रेज्ड बेड, सेकंड इज सीड, ठीक है, सीड ट्रीटमेंट में कार्बोनिल। देन थर्ड थिंग इज योर सीडलिंग्स आर रेडी। आपकी जब सीडलिंग रेडी हो जाएगी ट्रांसप्लांटिंग के लिए, एट दैट टाइम आल्सो, उसके टाइम में भी आपको इन सीडलिंग्स को फंगिसाइड में डिप करना है, ठीक है। आपको अगेन कार्बोनिल का 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में डालना है, उसका उस सस्पेंशन में आपको सीडलिंग को डिप करके रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ही फिर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना है। बट इन केस ऑफ चिली विल्ट, इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि जो आप मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करते हो, अगेन दैट शुड बी ऑन रेज्ड बेड, वो भी रेज्ड बेड। अगर रेज्ड बेड इज नॉट पॉसिबल, देन आप वो रिजेस बनाते हैं ना, रिजेस बनाते हैं, फार्मर करते हैं वो रिजेस, तो उन रिजेस पे उसको ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। और मेन फील्ड में आप एक चीज करो, ये बायो कंट्रोल जो है ना, ट्राइकोडर्मा, इसको यूज किया करो। फार्मर को आप रिकमेंड करो कि जब आप FYM जो यूज करते हैं आप फील्ड में, बायो कंट्रोल, इसको बायो कंट्रोल एजेंट को आपको कमर्शियल फॉर्मुलेशन उसकी लानी है, उसका 1 kg आपको 50 kg FYM में मिलाना है, ठीक है। 50 kg FYM में उसको मिलाना है और उसको फिर 10-15 दिन के लिए ऐसे ही रखना है, सो दैट इट इज मल्टीप्लाइड इन FYM। ये बायो कंट्रोल उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एज पर जब आप फील्ड प्रिपेयर करते हैं, जिस टाइम आप FYM यूज करते हैं ना फील्ड में, वही FYM फिर जिसमें आपने बायो कंट्रोल मल्टीप्लाई किया है, उसी को फिर फील्ड में अप्लाई करें। सर हम फॉर्मेलिन भी यूज करते हैं। फॉर्मेलिन इज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ Fertilization of soil। हाँ, वो तो ज़्यादा नर्सरी में नर्सरीज में करते हैं। नर्सरी में कर सकते हैं। जैसे आप पॉट्स में कोई प्लांट ग्रो करते हो तो उसमें हम स्टरलाइज कर सकते हैं फॉर्मेलिन से, उसके बाद सॉइल। और फॉर्मलिन में भी ये you have to cover it with जब आप फॉर्मेलिन को उसको कवर करना है, बंद करना है। मतलब जैसे पॉली हाउसेस में आती है ना यूजुअली, तो फॉर्मलिन अप्लाई करते हैं, एक्चुअली उसकी फ्यूम्स होती हैं जो डिसइंफेक्ट करती है। फिर आपको इंश्योर करना है उसके बाद 10-15 दिन के बाद ह्यूमस सारे निकल जाए उसके बाद। वो ज़्यादातर ये जो कमर्शियल नर्सेज होती है ना, ऑर्नामेंटल नर्सेज, वो बहुत करते हैं, वो करते हैं। उनके लिए तो बेस्ट रहता है। हाँ, क्योंकि सॉइल में जो पैथोजन होते हैं वो इसलिए इसमें जो सर ने कहा ये FYM में पहले मिक्स करते हैं इनोकुलेट, फिर वहाँ पे वो ग्रो होता है ना, उसकी पॉपुलेशन बनती है, उसके बाद उसी FYM को फिर यूज करना है। ट्राइकोडर्मा एनरिच्ड FYM हो जाता है, उसके बाद वो सॉइल। और कोई क्वेश्चन? या जैसे आप चिल्ली का बोल रहे थे ना, उसमें क्रॉप रोटेशन भी इम्पोर्टेंट है। वो मैंने आपको बताया कि हाँ, क्रॉप रोटेशन कि चिली में जो आप कह रहे थे, एक प्रैक्टिस और भी है कि उसमें आप क्रॉप रोटेशन करो। अगर आपका चिली विल्ट मैनेज नहीं हो रहा है, हर साल आ रहा है,
तो बेटर इज कि आप वहाँ पे चिली ना ग्रो करो, कोई और करो। और रेज बेड्स पे भी जब रेज बेड मैंने को कहा कि रेज बेड्स पे आइदर रेज बेड पे आपको ट्रांसप्लांट करना है या रिजिस पे। फार्मर करते हैं वो प्रैक्टिस, वो रिजिस बनाते हैं, देन दे ट्रांसप्लांट द सीड्स आर रिजिस। डॉक्टर ज़हूर, इन्होंने काफ़ी टाइम दिया, आपके साथ इंटरेक्ट किया, जस्ट टोकन ऑफ